and supervision. A quick recap of whatever we have talked about yesterday, because I believe that majority of you were not here yesterday. So BMBS actually is all about managing the businesses, how to manage the organizations, and what are the behavioral issues जो किसी भी इदारे में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. आपका जो टेक्स्ट है that is divided in two portions. इसके दो मेन पोर्शंस हैं. The first part is management oriented and the second part is behavior, leadership and conflict negotiation oriented. उसमें वो चीज़ें आ जाती हैं. और इसमें एक तीसरा पार्ट भी है छोटा सा जो IT ओरिएंटेड है, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक्स आएंगे. So basically आपकी जो टेक्स्ट बुक है that is divided in total 5 parts, A, B, C, D and E. There are total 5 parts in your textbook. Part A comprises of chapter number 1 and 2. Part B comprises of 3, 4 and 5. Part C comprises of 6 and 7. Part D comprises of 8, 9 and 10. And part E comprises of 11th chapter. The overall paper is collectively developed from these 5 parts. From part A, you will be getting a question worth 25 marks. From part B, you will be getting a question worth 20 marks. Part C, 20 marks. Part D, 20 marks. And part E, 15 marks. So your total aggregate is going to be 100 out of these parts. The first two chapters basically discuss what management is, management क्या होती है और management की environment क्या होती है, environment में किस तरह जो businesses हैं वो काम करते हैं. Part B जिसमें third, fourth and fifth chapter आ रहा है. Third chapter will be all about organizational structure. Fourth chapter is change management and fifth chapter is culture. Then we have part C. These two parts, these first 5 chapters, they are management oriented. These 5 chapters, they are behavior and leadership oriented. And this part is IT oriented. In this particular part, we are going to talk about information technology, what IT is and how does IT work. So basically, your distribution of marks from these 11 chapters is going to be in this manner. In yesterday's class, because there was a lesser number of students yesterday, so we are going to just give a recap what we discussed yesterday. From the first chapter, it's all about management concepts. What management is, differentiating between management and leadership, understanding about what are the theories of management, and then certain management skills. जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर 3 चीजें आती हैं. The first chapter that talks about management concepts, इसमें 3 एरियाज आते हैं.
पहला एरिया डेफिनेशंस, second area is theories, and third area is management skills. Theories and management skills. Defining what management is, there are three concepts in the field of management. जो hierarchy है management के concept की, that is a pyramid, an inverted pyramid. We have leadership, we have management, and we have supervision. There are three key areas of management: leadership, management and supervision. What is leadership? क्या होती है? The widest scope, किसी भी इदारे के अंदर जो widest scope होता है, that is of leadership. इसका maximum scope होता है. Then we are going to talk about defining what management is. Management क्या होती है? And then we are going to discuss supervision. उसके बाद आएंगी theories. Theories में दो areas हैं, एक है early theory और एक है modern theories. There are two types of theories in management: early theories and modern theories. First of all, let's define what is leadership. Leadership is one of the most important phenomena. जनरली ये दोनों टर्म जो हैं इनको हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं फॉर अ ले पर्सन, एक आम आदमी के लिए दोनों टर्म जो है ये इंटरचेंजेबल है. बट इफ वी टॉक अबाउट, अगर हम बात करें मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन दोनों टर्म्स में फर्क है. लीडरशिप इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स. दूसरों को जब आप इन्फ्लुएंस करते हैं, जब आप लोगों को किसी गोल की तरफ टारगेट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं लीडरशिप. लीडरशिप बेसिकली मींस लीड अदर्स. जब आप लीड करते हैं लोगों को, मेकिंग द पीपल अंडरस्टैंड व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. आप लोगों को बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है. और ये काम आप कैसे करते हैं? गाइडेंस देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं. गिव देम गाइडेंस, यू गिव देम डायरेक्शंस. अ लीडर ऑलवेज हैव सम फॉलोअर्स. लीडर के हमेशा फॉलोअर्स होते हैं. लीडरशिप is one of the widest and the most detailed use area in the field of management these days. आजकल के दौर में लीडरशिप जो है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कंपोनेंट है. The second phenomena is management. Management is somehow a structured concept. इसके अंदर एक structure होता है. We have a structure in management. It's a process of planning, organizing, leading, controlling. Management is all about a complete process of planning, organizing, leading and controlling. And when we talk about management, the process of management, in which we have four key areas: we plan, we organize. अच्छा अच्छा, यानी अब ये ठीक हो गया. बिल्कुल ठीक. So in the process of management there is a complete structure involved. एक complete structure इसके अंदर involve होता है. उसमें आप
5 मेन काम करते हैं। आप प्लान करते हैं, आप ऑर्गेनाइज करते हैं, आप कोऑर्डिनेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और आप कंट्रोल करते हैं। मैनेजमेंट इज मोर ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। लीडरशिप इज समहाउ अ पर्सनल फिनोमेना जिसमें आप इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। आगे जाके जब थ्योरी की बात आएगी तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर देयर इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड देन कंट्रोलिंग। This is what we do in management. We set the goals, we plan how to achieve those goals, we organize the resources, we coordinate the activities, we try to monitor the actual performance controlling process में। ये हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे अर्ली थियरीज ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। हेनरी फॉयल ने मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस बयान किए थे, एंड दोज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर द प्राइम इंपॉर्टेंट फिनोमेना, जो कि 5 हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड दीज फंक्शंस आर प्राइमरली द मेन फिनोमेना जिसके ऊपर हम पूरी मैनेजमेंट को चलाते हैं। What we do is we make the people work through a complete process to plan, to organize, to lead, to control। ये काम हम मैनेजमेंट में करते हैं। लीडरशिप इज द वाइडेस्ट फिनोमेना एंड देन कम्स मैनेजमेंट। और इसके बाद तीसरा एक एरिया है जिसे कहते हैं सुपरविजन। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन की हद तक ये तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है। You might be asked to define leadership, you might be asked to define management, or you might be asked to define supervision. Supervision has the narrowest scope. इसका scope सबसे narrow होता है। Supervision is all about monitoring and looking over the others. जब आप organizational hierarchy की बात करते हैं, when we talk about the hierarchy of organization, generally we have 4 levels. Here we have top management, here we have middle management, here we have front line management, and here we have non managers। जो लेबर क्लास होती है वो लोग जो नॉन मैनेजर कहलाते हैं। जनरली ये जो दो एरियाज होते हैं, दीज एरियाज आर मोर कंसर्न्ड विद लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। दिस एरिया इज कंसर्न्ड विद सुपरविजन। इस एरिया में हम सुपरविजन करवाते हैं। क्लोजली लोगों को मॉनिटरिंग करना, लोगों को क्लोजली ऑब्जर्व करना, उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, ये काम हम सुपरवाइजरी फिनोमेना में करते हैं। अपार्ट फ्रॉम देयर रेगुलर टास्क, सुपरवाइजर्स लोगों को ट्रेन भी करते हैं, उन्हें ऑन जॉब ट्रेनिंग भी देते हैं, बट स्टिल ये एक नैरोएस्ट फिनोमेना है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। सो लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, यू मस्ट बी एबल टू डिफाइन दीज टर्म्स प्राइमरली। आपको पता होगा ये टर्म्स जो है वो डिफाइन कैसे होती हैं। एंड सेकेंडली, यू मस्ट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ईच ऑफ दीज। आपको इन तीनों के दरमियान डिफरेंस क्लियरली पता होना चाहिए। लीडरशिप का स्कोप वाइडेस्ट होता है, लोगों को लीड करते हैं आप, इसमें आप लोगों को गाइड करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं। बेसिकली दिस इज अ प्रोसेस टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू मूव टुवर्ड्स टारगेटेड गोल्स। मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड कंट्रोलिंग। इसमें डिटेल में हम जाके अपने गोल्स को डिफाइन करते हैं, टारगेट्स को सेट करते हैं। इसके अंदर हम अपने जो ओवरऑल परफॉर्मेंस मेजर्स हैं उनको डिटरमिन करते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी डू इन मैनेजमेंट। फिर अभी बहुत सारी थ्योरीज आएंगी फिर मैनेजमेंट के ऊपर, उसमें मजीद ये चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। और तीसरा एरिया होता है सुपरविजन का। इन सुपरविजन वी क्लोजली कंट्रोल एंड मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ द अदर। जो फ्रंट लाइन मैनेजमेंट होती है, दे आर द पीपल हु आर एक्चुअली द सुपरवाइजर। कोऑर्डिनेट करते हैं, क्लोजली लोगों की मॉनिटरिंग करते हैं, एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। एंड दे आर द पीपल हु ट्रेन द अदर्स। ये कोऑर्डिनेट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, सारा काम जो है ये सुपरवाइजरी लेवल पे होता है। मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है दैट हैज बीन वेरी old concept used in even 19th century, and apart from that we have different theories. Generally there are two schools of thought. There are two schools of thought in the domain of management. One is known as early theories
and one are known as modern theories. मैनेजमेंट के स्कूल ऑफ थॉट में देयर आर टू theories, अर्ली theories एंड मॉडर्न theories. अर्ली theories टोटल 5 है इन नंबर, देयर आर 5 अर्ली theories, और मॉडर्न theories जो है ये भी 5 है, और एक theory जो है वो इनके दरमियान ब्रिज क्रिएट करती है, जिसे हम एल्टन मेयो की theory कहते हैं, दैट इज नोन एज एल्टन मेयो. अर्ली theories जो है दे वर प्रेजेंटेड बिफोर 21st century, generally in 19th century and 20th century. अर्ली theories ऑफ मैनेजमेंट जो है ये ज्यादातर 19th century में प्रेजेंट की गई थी, राइटली स्टार्टिंग फ्रॉम 1850s. 1850s से ऑनवर्ड्स सबसे पहला जिसमें स्कूल ऑफ थॉट था दैट वाज F.W. टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट. देयर आर 5 नेम्स इन अर्ली theories. अर्ली theories में 5 नाम है. टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट. Then we have Henry Foyle. Then we have Max Weber. ये 3 नाम जो हैं, टेलर, फॉयल एंड वेबर, these 3 names are the most important one. इसके अलावा इसमें 2 नाम और हैं, अर्विक एंड मॉस्केंटर. These are less important. इन पांचों की अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट. ईच वन ऑफ देम हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एट देयर ओन. उसमें सबसे पहला नाम आता है टेलर का, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट. ये जो तीनों नाम है, ऑल ऑफ दीज 3 नेम्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू साइंटिफिक मैनेजमेंट. और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट में तीनों की अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन है. लाइक टेलर टॉक्ड अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फॉयल टॉक्ड अबाउट 2 थिंग्स, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड वेबर टॉक्ड अबाउट ब्यूरोक्रेसी, मैक्स वेबर. सो इन तीनों की साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरफ अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन है. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है. ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. He was the first person who talked about the scientific techniques of doing the things. कामों को आप किस तरह साइंटिफिकली करते हैं. How do we do the things scientifically? How do we plan the things, organize them? टेलर ने दुनिया को, basically he was an American, he worked as an engineer, और इसने एफिशिएंसी ऑफ द वर्क को इंप्रूव करने के लिए एक साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी डेवलप की थी. टेलर टॉक्ड अबाउट व्हाट साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एंड हाउ टू इंप्रूव वर्क एफिशिएंसी. बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सो फार बीएमबीएससी किसी भी अटेम्प्ट में, सिवाय पीटर ड्रकर के जो कि मॉडर्न थ्योरीज में एक नाम आएगा, अभी तक किसी थ्योरी को एड्रेस नहीं किया गया. तो इस दफा बड़े ब्राइट चांसेस हैं कि किसी ना किसी थ्योरी को एग्जामिनर फोकस करेगा. And out of early theories of management, the first 3 names are very important: Taylor, Foyle and Weber. टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स बताए थे दुनिया को साइंटिफिक मैनेजमेंट के. टेलर टॉक्ड अबाउट 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. टेलर ने कहा था कि देयर इज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ थिंग. हर काम को करने का एक बेस्ट वे जरूर होता है. एक साइंस डेवलप करें, डेवलप अ साइंस फॉर ईच टास्क. एफिशिएंसी, रिमेंबर दिस थिंग, जब भी आपने किसी भी टास्क में एफिशिएंसी लेके आनी होती है ना, तो यू हैव टू फोकस ऑन कि उसके अंदर मिनिमम पॉसिबल टाइम में मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट आप कैसे दे सकते हैं. और ये तभी मुमकिन है जब आप उस टास्क को करने का बेस्ट पॉसिबल वे डिटरमिन करेंगे. देयर इज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ थिंग. हर काम को करने का एक वन बेस्ट वे जरूर होता है. टेलर ने कहा था कि डेवलप दैट साइंस, उस साइंस को डेवलप करें, और उस साइंस के अगेंस्ट
परफॉर्मेंस एफिशिएंसी को डिटरमिन करें। दिस वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टेलर, डेवलप अ साइंस ऑफ ईच वर्क, हर काम की एक साइंस को डेवलप करें, नंबर 1। और नंबर 2, टेलर सेड पुट द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, पुट द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। आप लोगों को केयरफुली सिलेक्ट करें, select the people carefully and see that what skills and abilities people have and they must be trained accordingly। फिर आपने उनको ट्रेनिंग भी देनी है। तो पहला प्रिंसिपल, डेवलप अ साइंस ऑफ ईच वर्क। सेकेंड प्रिंसिपल, that talks about put the right person on the right job। Then third principle talks about scientifically training the workers। लोगों को आपने साइंटिफिकली ट्रेन करना है, लोगों को आपने साइंटिफिकली डेवलप करना है ताकि वो किसी भी टास्क को एफिशिएंटली पूरा कर सके। और चौथा प्रिंसिपल है इसका इक्वालिटी। द फोर्थ प्रिंसिपल इज इक्वालिटी। ट्राई टू ब्रिंग द पीपल ऑन इक्वल ग्राउंड, लोगों को आप इक्वल ग्राउंड पे लेके आए। डिवाइड द टास्क इक्वली अमंग्स्ट पीपल, लोगों में टास्क जो है उसे आप इक्वली डिवाइड करें ताकि लोग जो है वो डिमोटिवेट ना हो, लोग एम्प्लॉइज जो है आपके वो ज्यादा वर्क एफिशिएंसी को इनपुट करें। एंड दे मस्ट बी एबल टू अचीव देयर टास्क प्रॉपरली एंड टाइमली। टेलर की जो थ्योरी है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड थ्योरी इन द वर्ल्ड। और अभी तक साइंटिफिक मैनेजमेंट पे जो जो इदारे काम करते हैं वो टेलर की थ्योरी को अभी भी प्रैक्टिस करते हैं। टेलर की थ्योरी के मुताबिक देयर इज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ थिंग, हर काम को करने का एक बेस्ट वे लाजमी होता है। मॉडर्न थियरीज ऑफ मैनेजमेंट में टेलर को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। देयर इज मच क्रिटिसिज्म ऑन टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि व्हेन यू डू समथिंग ओवर एंड ओवर अगेन, जब आप एक काम बार बार करते हैं, व्हेन यू डू समथिंग अगेन एंड अगेन, तो दैट एक्टिविटी मेक्स द ओवरऑल वर्क डल। उसके अंदर जो आपकी ओवरऑल मॉनिटरिंग है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, आपकी जॉब मोनोटोनस हो जाती है। हम एक टर्म यूज करते हैं मोनोटनी। मोनोटनी का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। एक काम जब आप बार बार करेंगे तो उसमें मोनोटनी आ जाएगी, और जब एक काम में मोनोटनी आ जाती है तो काम जो है वो डल हो जाता है, काम में आपका दिल कम लगता है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो उससे अफेक्ट होती है। तो और फिर आजकल जो दौर जा रहा है टुडेज एरा दैट इज ऑफ मल्टीटास्किंग। टेलर ने कहा था कि लोगों को स्पेशलाइज करें, पीपल मस्ट बी स्पेशलाइज्ड इन देयर एक्टिविटीज, ठीक है। लेकिन जो आजकल का दौर जा रहा है, यू माइट हैव टॉक्ड अबाउट इन इकोनॉमिक्स, आपने एडम स्मिथ को पढ़ा होगा। एडम स्मिथ की किताब आपने पढ़ी होगी वेल्थ ऑफ नेशन, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर ये कहा जाता है कि मेक पीपल स्पेशलाइज्ड, डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ वर्क का पॉइंट पढ़ा होगा आपने। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ टेलर उसी को एक्सटेंड करता है, मेक पीपल स्पेशलाइज्ड, क्योंकि वर्क एफिशिएंसी तब तक नहीं आ सकती जब तक लोगों को आप स्पेशलाइज नहीं बनाएंगे। यू कैन नॉट ब्रिंग वर्क एफिशिएंसी इफ पीपल आर नॉट स्पेशलाइज्ड इन देयर टास्क। लेकिन आजकल जो दौर जा रहा है दैट इज ऑफ मल्टीटास्किंग। अब जो आपका मेन काम करने का तरीका है दैट इज फोकसिंग ऑन मल्टीटास्किंग, यानी आप मल्टीटास्कर्स को डेवलप करते हैं। नाउ वन पर्सन इज नॉट स्पेशलाइज्ड इन डूइंग वन टास्क, वन पर्सन इज स्पेशलाइज्ड इन डूइंग मल्टीपल टास्क। अब एक बंदा जो है वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है, ही इज नॉट डेवलप्ड टू डू जस्ट वन टास्क। तो ये कुछ इसकी तनकीद है, ये कुछ इसकी क्रिटिसिज्म है टेलर की, इसको हम मजीद आगे जाके इलैबोरेट करेंगे मॉडर्न थ्योरीज के अंदर। सो टेलर का जो क्रक्स है इसकी थ्योरी का, टेलर की थ्योरी का, दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, व्हाट साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करती है, हाउ कैन वी ब्रिंग इन वर्क एफिशिएंसी, हम वर्क एफिशिएंसी कैसे लेके आते हैं किसी भी काम के अंदर, एंड अगेंस्ट दैट
टेलर हैज गिवन 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. So when we talk about Taylor, the contribution of Taylor is scientific management under the field of management. Now coming towards the second important name, Henry Foyle. हेनरी फॉयल ने मैनेजमेंट की दुनिया को 2 चीजों से नवाजा था. He has contributed in 2 main areas of management. Firstly, he has talked about functions of management. हेनरी फॉयल ने मैनेजमेंट फंक्शंस की बात की थी सबसे पहले. He talked about functions of management, and secondly he talked about principles of management. हेनरी फॉयल ने functions of management, जिसे हम task of management भी कहते हैं, हेनरी फॉयल टॉक्ड अबाउट फंक्शन या टास्क ऑफ मैनेजमेंट. इसने कहा था कि 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, या 5 टास्क होते हैं मैनेजमेंट के. टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट और टू कम्युनिकेट एंड टू कंट्रोल. इसके लिए हम यूज करते हैं वर्ब्स भी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. ये जो वर्ड कमांडिंग है, ये आजकल के दौर का वर्ड हो चुका है लीडरशिप. दिस इज व्हाट वी कॉल एज लीडरशिप इन टुडेज वर्ल्ड. पहले हम इसे कमांडिंग कहते थे, और आजकल ये जो वर्ड है इसे हमने रिप्लेस कर दिया है लीडरशिप से. मैनेजमेंट के स्कूल ऑफ थॉट में, मैनेजमेंट की दुनिया में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है अगर किसी की, तो वो हेनरी फॉयल की है. और अब ये हेनरी फॉयल के जो 5 प्रिंसिपल इसके टास्क थे मैनेजमेंट के, द 5 टास्क ऑफ मैनेजमेंट. Now these tasks have been converted into 4 main functions of management: planning, organizing, leading and controlling. Coordinating, communicating को हमने leading में merge कर दिया. And now we talk about planning, organizing, leading and controlling. Henry Foyle ने कहा था ये 5 हैं: to plan, to organize, to command, to coordinate and to control. तो ये एक important Henry Foyle की contribution है जो कि आज के दौर में भी इस्तेमाल होती है. And secondly, Henry Foyle has talked about 14 principles of management. Henry Foyle ने कहा था कि मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स हैं. इट विल नेवर हैपन कि 14 के 14 प्रिंसिपल पे एक लॉन्ग क्वेश्चन अपेयर हो पेपर के अंदर. इट विल नेवर हैपन कि 14 के 14 प्रिंसिपल पे जो एग्जामिनर है वो आपसे इसका आउटपुट मांग ले, यानी आपने 14 के 14 प्रिंसिपल्स को मेमोराइज किया हुआ है. हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 14 में से एटलीस्ट 2 या 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर वो आपसे कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी है उसके ऊपर आपसे डिबेट मांग ले. यू हैव टू मेमोराइज दीज 14 प्रिंसिपल्स. इसके लिए आज का कोई आप एक्रोनिम जो है वो आप डेवलप कर सकते हैं. यू कैन डेवलप एनी एक्रोनिम टू मेमोराइज दीज 14 प्रिंसिपल्स. जैसा 14 नकात थे कायदे आजम के, इसी तरह ये 14 प्रिंसिपल हैं हेनरी फॉयल के. प्रिंसिपल कहते हैं अंडरलाइंग रूल को. किसी भी काम को अगर आपने करना है तो उसका अंडरलाइंग रूल क्या है, उसके पीछे उसकी एक बैकग्राउंड क्या है. हेनरी फॉयल ने कहा था कि अगर आपने इफेक्टिव मैनेजमेंट करनी है तो आपको ये 14 प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे. इफ यू हैव टू गो फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, दीज 14 प्रिंसिपल्स नीड टू बी फॉलोड. इफ यू हैव योर टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू, तो ये 14 के 14 प्रिंसिपल जो है ये वन बाय वन अगर आप देख लें. द फर्स्ट वन इज वर्क specialization, division of work. Divide the task amongst people. 14 प्रिंसिपल्स में पहला है डिवीजन ऑफ वर्क. To bring work specialization, we have to divide the task amongst people. लोगों की स्किल को बेहतर करने के लिए आपको टास्क को ब्रेक करना पड़ता है बिटवीन द पीपल. इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क. द सेकंड प्रिंसिपल व्हिच was discussed by Foyle, that was authority. People won't work until there is some authority over the people. उनसे काम करवाने की जब तक अथॉरिटी नहीं होगी लोग काम नहीं करेंगे. मैनेजर मस्ट हैव द अथॉरिटीज टू गिव ऑर्डर्स. मैनेजर के पास अथॉरिटी होनी चाहिए ऑर्डर देने की.
और अथॉरिटी के साथ साथ फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद अथॉरिटी। ये दोनों इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स है, एक के साथ दूसरे का होना जरूरी होता है। The third principle is discipline. Discipline means the things must be organized and methods must be developed. हर चीज को करने का एक तरीका होता है, और ये तरीका जो है ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। अगर ये तरीका नहीं होगा एक इदारे के अंदर, डिसिप्लिन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल पंक्चुअलिटी है, लेट्स सपोज इट इज अ कंसर्न ऑफ डिसिप्लिन। या फॉर एग्जांपल आपका एक अटायर है, आपका एक ड्रेस कोड है इदारे में। जैसे बैंकिंग सेक्टर में होता है ना कि आप यू हैव टू बी फॉर्मली ड्रेस्ड जब इफ यू आर डीलिंग विद द कस्टमर। तो ये डिसिप्लिन का फैक्टर है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप चीजों को एक पर्टिकुलर होमोजीनियस तरीके से डिफाइन करते हैं, आप उसमें हार्मनी लेके आते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल एज डिसिप्लिन। द फोर्थ प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, देयर इज ओनली वन बॉस। इदारों में हमेशा एक बॉस होता है। देयर इज वन डायरेक्ट सुपरवाइजर। रिमेंबर दिस थिंग, if you are going to have multiple bosses the things will get complicated. boss has to be one. boss हमेशा एक होता है। अगर बॉस एक से ज्यादा होंगे तो फिर इदारों में काम नहीं हो पाएगा, वर्क एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। देन वी हैव यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, पूरे इदारे में जितने भी लोग काम कर रहे हैं दे मस्ट बी हैविंग अ सिंगल गोल, अ सिंगल ऑब्जेक्टिव। दे मस्ट बी वन सिंगल प्लान जिसके ऊपर सारे मिलकर काम कर रहे हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स कि आपका जो किबला है वो एक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बंदा जो है वो वेस्ट को जा रहा है, एक ईस्ट को जा रहा है, एक साउथ को जा रहा है। द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन दैट देयर हैज टू बी अ सिंगल फिनोमेना। एक सिंगल गोल है, सिंगल फोकस है आपका, और उसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं अपने इदारे में। दैट इज नोन एज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसके बाद एक छठा प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है कुर्बान कर देना या लेस इंपॉर्टेंट कर देना किसी चीज को। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जब आप किसी इदारे के लिए काम कर रहे होते हैं तो फिर ग्रेटर गुड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस इदारे के इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द इंटरेस्ट ऑफ अ सिंगल पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट, रादर द इंटरेस्ट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और लोगों को अपने इंडिविजुअल जाती मफादात को साइड में रखना पड़ता है इदारे के लिए काम करने के लिए। इसे हम एक और नाम भी देते हैं, एजेंसी थ्योरी भी ये कहलाती है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। द सेवंथ प्रिंसिपल इज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन, पे द पीपल अकॉर्डिंग टू वट एवर दे डिजर्व। लोगों को उनके डिजर्व के मुताबिक पे करें, सेटिस्फैक्टरी अमाउंट पे करें, रिवॉर्ड दें उनको, ताकि वो लोग मोटिवेट हों। जब तक आप किसी को पे नहीं करेंगे द पीपल वोंट वर्क फॉर यू, लोग आपके लिए काम नहीं करेंगे। द एथ प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन, दिस प्रिंसिपल हैज बीन मच क्रिटिसाइज्ड। आजकल के दौर में इस प्रिंसिपल के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। नाउ ऑर्गेनाइजेशंस बिलीव कि हमें डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। हम इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर में जाके पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर कि आजकल जो इदारे हैं वो डिसेंट्रलाइज करते हैं अपने कामों को। बट हेनरी फॉयल ने कहा था कि यू हैव टू मेक द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एट अ सिंगल पॉइंट। एक जगह पे आपने डिसीजन मेकिंग को करना है। द नाइन्थ प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट स्केलर चेंज। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन है, जितनी भी इसके अंदर आपकी ओवरऑल चैनलिंग है,
वो एक हायरार्की के थ्रू होनी चाहिए। एवरीबडी मस्ट नो कि वो कहां फॉल करता है हायरार्की में। स्केलर चेन क्या होती है? दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ स्केलर चेन। आप एक हायरार्की बना देते हैं। दिस इज टॉप मैनेजमेंट, दिस इज मिडिल मैनेजमेंट, दिस इज फ्रंट लाइन मैनेजमेंट, दिस इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। और हर लेवल को पता है कि उसका क्या काम है, उसका क्या परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है एंड व्हाट आर दे एक्सपेक्टेड टू डू। ठीक है, इसे कहते हैं स्केलर चेन या चेन ऑफ कमांड भी कहते हैं। देन वी हैव ऑर्डर। 10वां प्रिंसिपल जो है दैट इज व्हाट वी कॉल एज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है यू हैव टू मेक द थिंग्स नीट, टाइडी, सेफ। ये वर्क प्लेस के हवाले से बात की जा रही है कि जो आपका वर्क प्लेस है दैट मस्ट बी अप्रोप्रिएटली डिजाइन, साफ सुथराई के लिहाज से, उसकी ओवरऑल जो टाइडीनेस है उसके लिहाज से। 11वां प्रिंसिपल है हेनरी फॉयल का, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इक्विटी। हेनरी फॉयल कहते हैं दैट देयर मस्ट बी इक्वालिटी। ये टेलर ने भी कहा था, ये वही सेम कॉन्सेप्ट है। टेलर ने कहा था इक्वालिटी, हेनरी फॉयल कह रहा है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है दैट यू हैव टू ट्रीट ऑल द पीपल इन द सेम मैनर। हर एक बंदे के साथ आपने अप्रोप्रिएट काइंडनेस को डेवलप करना है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इक्विटी। द 12th प्रिंसिपल इज टेन्योर, TENURE। 12वां जो प्रिंसिपल है ये है टेन्योर। टेन्योर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय टेन्योर? मेकिंग द पीपल वर्क फॉर यू फॉर लॉन्गर ईयर्स। ज्यादा अरसे तक आप लोगों को अपने साथ अटैच करें। जितना टेन्योर ज्यादा होगा लोगों की वर्क एफिशिएंसी बेहतर होगी, लोगों की ओवरऑल लॉयल्टी बेहतर होगी। जितना वर्क टेन्योर कम होगा लोगों की वर्क एफिशिएंसी कम होगी और लॉयल्टी भी कम होगी। तो आपको टेन्योर बढ़ाना होता है, यू हैव टू मेक योर टेन्योर स्टेबल। एम्प्लॉय टेन्योर है उसको आपने स्टेबल करना होता है। The 13th principle which was discussed by Henry Foyle is initiative. Take some initiative. Take some initiative. Initiative का मतलब होता है that you must be given some freedom to make some decisions. एम्प्लॉयज को कुछ आपने फ्रीडम देना है ताकि वो अपने हिसाब से अपने प्लान्स को कैरी आउट कर सकें, अपने डिसीजन थोड़े बहुत खुद ले सकें। कहते हैं इनिशिएटिव। एंड द 14th प्रिंसिपल इज टीम स्पिरिट। द 14th principle is team spirit. The overall spirit of the team is very important. You have to promote the team spirit across the organization ताकि लोग ज्यादा मोटिवेट हो, मिल के काम करें, यूनिटी के साथ काम करें। तो ये तमाम के तमाम जो प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फॉयल की कंट्रीब्यूशंस को एक्सप्लेन करते हुए यू हैव टू कीप इनटू कंसिडरेशन। टेन्योर, टेन्योर कहते हैं टाइम ड्यूरेशन को, TENURE। टेन्योर मींस टाइम ड्यूरेशन। द टाइम ड्यूरेशन, द नंबर ऑफ इयर्स एन एम्प्लॉय इज स्पेंडिंग विद द कंपनी, इसका टेन्योर कहलाता है। लाइक इफ आई एम विद पैक फॉर द लास्ट 2 years तो ये मेरा टेन्योर कहलाएगा। हेनरी फॉयल कहते हैं कि स्टेबिलिटी इन टेन्योर को लेके आए, लोगों के अपने साथ जो जॉब ईयर्स है वो सॉरी, जो जॉब ईयर्स है उनको बढ़ाएं, उनको इंप्रूव करें, उनको इंक्रीज करें। एक एम्प्लॉय को आपके साथ काम करते हुए 10 साल हो गए फॉर एग्जांपल, और एक एम्प्लॉय को आपके साथ काम करते हुए 2 हफ्ते हुए हैं। व्हाट डू यू बिलीव, जिसको 10 साल हो गए हैं वो बंदा ज्यादा एफिशिएंट होगा फॉर एग्जांपल, या ज्यादा लॉयल होगा, या जिसको 2 हफ्ते हुए हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होगा या लॉयल होगा? ऑब्वियसली 10 साल वाला जो है वो ज्यादा कामों को समझता होगा, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। जब एक्सपीरियंस ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वर्क एफिशिएंसी ज्यादा होगी। दैट इज व्हाट वी कॉल एज टेन्योर। ठीक है जी, इज इट क्लियर? ओके जी। नाउ हेनरी फॉयल ने 2 मेन एरियाज में कंट्रीब्यूट किया था टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फॉयल हैज कंट्रीब्यूटेड
टुवर्ड्स प्राइमरीली टास्क ऑफ मैनेजमेंट, जो कि 5 फंक्शंस भी कहलाते हैं, टास्क भी कहलाते हैं। एंड सेकेंडली हेनरी फॉयल हैज टॉक्ड अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये दो मेन हेनरी फॉयल की कंट्रीब्यूशन हैं टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, हेनरी फॉयल के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, और इसके बाद जो अर्विक है इसने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए थे दुनिया को। अब अगर आप अर्विक के प्रिंसिपल्स को देखें, अर्विक हैज गिवन 10 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, मोर और लेस तकरीबन सेम है। जो हेनरी फॉयल के प्रिंसिपल्स हैं तकरीबन वही अर्विक के प्रिंसिपल हैं, सिवाय 1 या 2 में कुछ डिफरेंस होगा। मतलब अब अगेन कॉन्सेप्ट सेम है, एवरीथिंग इज द सेम, देयर इज नथिंग न्यू इन इट। जैसे फॉर एग्जांपल हेनरी फॉयल ने वर्ड यूज किया प्लानिंग का, प्लान का, और अर्विक ने वर्ड यूज किया ऑब्जेक्टिव का, that every organization must have an objective to focus. हेनरी फॉयल ने वर्ड यूज किया डिवीजन ऑफ वर्क का, डिवाइड द वर्क अमंग्स्ट पीपल। अर्विक ने वर्ड यूज कर लिया स्पेशलाइजेशन का, मेक द टास्क स्पेशलाइज्ड, टास्क को आप स्पेशलाइज्ड कर लें। हेनरी फॉयल ने अथॉरिटी का वर्ड यूज किया, इसने भी वर्ड यूज किया अथॉरिटी का। दो ऐसी चीजें, देयर आर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो अर्विक के प्रिंसिपल्स में हैं और हेनरी फॉयल ने उनको एक्सप्लेन नहीं किया। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, नंबर 1 डेफिनेशन एंड नंबर 2 कॉन्टिन्यूटी। अर्विक ने कहा था दैट एवरी जॉब मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, हर बंदे की जो जॉब है इदारे में दैट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, उसका रोल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे जो एक्सपेक्टेड उसकी आउटपुट है, ये उसे वर्ड यूज किया था डेफिनेशन का। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अर्विक ने जो कहा था दैट वाज कॉन्टिन्यूटी। हेनरी फॉयल ने इसके ऊपर कोई लाइट नहीं थ्रो की थी। अर्विक सेड दैट यू हैव टू रीऑर्गेनाइज, यू हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ, मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है। अर्विक के अगर आप 10 पॉइंट्स पढ़े अपनी किताब से, अगर आपके पास अपनी बुक है, तो द फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव, देन वी हैव स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारे के सारे पॉइंट्स फॉयल ने भी एक्सप्लेन किए, सिर्फ नामों का फर्क है। अच्छा, यहां पे उसने वर्ड यूज किया कॉरेस्पॉन्डेंस का, ठीक है जी। हमने पीछे वर्ड यूज किया था स्केलर चेन का, हमने पीछे वर्ड यूज किया था स्केलर चेन का, यहां पे वर्ड आ गया कॉरेस्पॉन्डेंस का। स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये फॉयल ने एक्सप्लेन नहीं किया था। स्पैन ऑफ कंट्रोल में हाउ मेनी इंडिविजुअल्स रिपोर्ट टू अ सिंगल सुपीरियर, इसे स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ जी बिल्कुल दानियाल, द वर्ड कैन नॉट बी चेंज। फॉर एग्जाम्पल जो प्रिंसिपल का नाम है वो इसका ही रहेगा। अगर ये वर्ड यूज कर रहा है स्पेशलाइजेशन, तो यू विल यूज द सेम वर्ड, लेकिन उसमें अंडरस्टूड है कि आप डिवीजन ऑफ वर्क वाला कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। जो नाम है ना, देखिए जब भी आप किसी थ्योरी को किसी नाम के साथ मंसूब करते हैं तो वो नाम चेंज नहीं हो सकता, दैट नेम कैन नॉट बी चेंज, ठीक है ना। अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं अरबिक की थ्योरी, तो अरबिक में वर्ड यूज हो रहा है स्पेशलाइजेशन, उसने वर्ड यूज किया था डिवीजन ऑफ वर्क, डिवाइड द वर्क अमंग्स्ट पीपल, ठीक है ना। आप लोगों को स्पेशलाइज करवाने के लिए उनमें टास्क को डिवाइड कर देते हैं। तो यस यू कैन यूज द सेम कॉन्सेप्ट, बट द नेम्स हैज टू बी देयर। जो नाम अरबिक के प्रिंसिपल हैं वो नाम वही रहेंगे। अरबिक के 3 प्रिंसिपल जो है वो फॉयल से थोड़े से वेरी करते हैं, वो उसमें डिस्कस नहीं किए गए। द फर्स्ट वन वाज डेफिनेशन, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी डिफाइंड। द सेकंड वन वाज कॉरेस्पॉन्डेंट, अपना स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, लेट्स सपोज मैं बॉस हूं एक जगह पे और मेरे नीचे 5 लोग काम कर रहे हैं, तो मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो 5 होगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल इज द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स इमीडिएटली रिपोर्टिंग टू अ सुपरवाइजर। कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जो है वो एक सुपरवाइजर को इमीडिएटली रिपोर्ट करते हैं, ये उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कहलाता है। अरबिक ने कहा था कि स्पैन ऑफ कंट्रोल मस्ट नॉट बी मोर देन 5, 5 से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी एक बंदे के मैक्सिमम 5 सबऑर्डिनेट होने चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अरबिक का, दैट वाज कॉन्टिन्यूटी। दैट वाज इंटरलॉक का मतलब होता है समथिंग दैट
क्रिएट सम एम्बिग्विटी और प्रॉब्लम। जब 6 से ज्यादा लोग होंगे तो आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो आपकी आपस में प्रॉब्लमेटिक क्रिएट होगी। मतलब ऐसे लोग जिनके टास्क मिलते जुलते हैं, जिनकी एक्टिविटीज मिलती जुलती हैं, उनको आप अपने स्पैन ऑफ कंट्रोल में काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मार्केटिंग मैनेजर है, उसके नीचे एक सेल्स की टीम है। अब उस सेल्स की टीम में 6 लोग काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज। नाउ ऑल ऑफ दीज 6 इंडिविजुअल्स हैव इंटरलॉक एक्टिविटीज। उनकी जो एक्टिविटीज है वो इंटरलॉक्ड है, यानी उन 6 के 6 बंदों का अल्टीमेट गोल क्या है, उन्होंने सेल्स करनी है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो होता है वो उन एम्प्लॉइज पे आप डेवलप करते हैं जिनकी एक्टिविटीज है वो इंटरलॉक्ड होती है। इंटरलॉक का मतलब होता है अलाइक एक्टिविटीज, एक जैसे काम जो होते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इंटरलॉक। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल मैक्सिमम 5 या मैक्सिमम 6 तक लेके जा सकते हैं आप, वो भी उन एम्प्लॉइज का जिनकी एक्टिविटीज है वो इंटरलॉक्ड होती है। जैसे एक मार्केटिंग मैनेजर, एक सेल्स मैनेजर है, उसके नीचे 6 सेल्स एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, 6 सेल्स के लोग हैं। नाउ दैट सेल्स मैनेजर हैज अ स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ 6, और वो जो 6 सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं उनकी एक्टिविटीज इंटरलॉक्ड है। उन सबका एक कॉमन टास्क है, वो क्या है, सेल्स करनी है उन्होंने। ठीक है, डील गॉट इट। तो ये इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो हम इसमें डिस्कस करते हैं। नाउ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट। मैनेजमेंट एक वन टाइम जॉब नहीं होती, इट इज नॉट अ वन टाइम टास्क। यू हैव टू रीऑर्गेनाइज, यू हैव टू रीप्लान, यू हैव टू रीडेवलप। बार बार आपको ये काम करना होता है। मैनेजमेंट इज नथिंग लाइक एक दफा आपने काम कर लिया तो उसके बाद वो फुल स्टॉप लग जाएगा। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप एक दफा एक टास्क अपना अचीव करते हैं, आप दोबारा उसे आप रीऑर्गेनाइज करेंगे, रीप्लान करेंगे, आप उसमें चेंजेस लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल 2014 का नेस्ले का टारगेट था कि उन्होंने लेट्स सपोज 100,000 यूनिट्स किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेल करने हैं पाकिस्तान में। ये नेस्ले का एक गोल था, उसका एक ऑब्जेक्टिव था, फॉर एग्जांपल एक साल का, 2014 का। अच्छा, 2014 गुजर गया, उन्होंने अपना ये टारगेट अचीव कर लिया, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने प्लान किया था, ऑर्गेनाइज किया था, एक्टिविटीज को कंट्रोल किया था। अब 2015 आ गया। अब 2015 में नया गोल होगा, नई प्लानिंग होगी, नए ऑब्जेक्टिव होंगे, नए टास्क होंगे। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दिस इज समथिंग व्हिच नेवर एंड्स, ये चलता रहेगा हमेशा। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो आपका एक कंटिन्यूअस वे में काम करेगा एंड इट्स नॉट गोइंग टू एंड। Yes, these theories are difficult to differentiate. मतीन, you are truly right. लेकिन आपको हर थ्योरी के अंदर ना एक थिन लाइन डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे टेलर है, टेलर की जो मेन थ्योरी है दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। फॉयल है, फॉयल की जो थ्योरी है दैट इज टू फोल्ड, उसमें दो चीजें हैं। नंबर 1, उसके अंदर आपके पास टास्क ऑफ मैनेजमेंट, एंड नंबर 2 उसके अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और अर्विक जो है इसकी भी सेम थ्योरी है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन वो प्रिंसिपल जो है वो टेलर के 14 है, अपना सॉरी फॉयल के 14 है और अर्विक के 10 है, और उसमें 2-3 वेरी करते हैं। तो एक क्लियर कट एक मेंटल मैप डेवलप करें आप। ये जिस तरह मैंने आपको एक लाइन लगाकर ड्रॉ करके दिखाया है, अब आप अर्ली थ्योरी में नाम लिखें। मतलब इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड, मैं ये रिकमेंड करता हूं स्टूडेंट्स को कि वो अपने सेल्फ डेवलप नोट साथ साथ बनाएं। और अब आप लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने अर्ली थ्योरी के नाम लिखे, नीचे आपने 5 नाम दे दिया, हर थ्योरी के आगे आपने की पॉइंट्स लिख दिए। ये आपके मेमोरी रिकॉल को आसान करेगा। इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिकॉल द ओवरऑल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट थिंग। इससे आसानी हो जाती है, ठीक है ना। ये मेरे भी कुछ डेवलप्ड नोट्स हैं इस तरह के, मैंने हर चैप्टर के कुछ ट्रीज बनाए हुए हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो उस हवाले से फिर आपके लिए डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। आपका एक मेंटल मैप, एक माइंड मैप जो है वो जरा इजीली डेवलप हो जाएगा। जैसे वेबर है, इफ यू टॉक अबाउट वेबर, अब वेबर ने बात की थी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, वेबर टॉक्ड अबाउट ब्यूरोक्रेसी। और मॉस्केंटर जो है, she also talked about sorry not Moskenter, she is Stewart, रोजमेरी स्टीवर्ट, मॉस्केंटर का नाम आगे आएगा, मॉस्केंटर आएगा मॉडर्न थ्योरी में, she is स्टीवर्ट, यहां पे नाम है स्टीवर्ट का। अब वेबर और स्टीवर्ट दोनों ने, इन दोनों ने, वेबर ने और स्टीवर्ट ने, रोजमेरी स्टीवर्ट ने और वेबर ने, दोनों ने ब्यूरोक्रेसी की बात की थी। वेबर के 6 पॉइंट्स हैं ब्यूरोक्रेसी के, और स्टीवर्ट जो है, रोजमेरी स्टीवर्ट जो है, इसने 4 पॉइंट्स में डिस्टिंग्विश किया था ब्यूरोक्रेसी को।
Weber talked about the bureaucracy in 6 points and Stewart talked about in 4 points. तो difference करना आसान है. It's not like कि differentiation मुश्किल है. The important thing is कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस author ने क्या contribute किया था. What is the contribution of each author towards the field of management? ठीक है ना? Is it clear? So today ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा आई गेस. हम अपने डिस्कशन को आज फिलहाल 3 थेरीज तक ही रखते हैं, टेलर, फॉयल एंड अर्विक. आपसे मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जब आप कल आए तो आपने इन तीनों थेरीज को थॉरली पढ़ा हो, इसमें से आपने बेसिक अंडरलाइन कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर किया हो, और कुछ जो भी क्वेश्चन होंगे आपके वो जरा काइंडली आप साथ लेते आइएगा. ठीक है जी. I have Mateen, I have Adil, Danial and Shahryar. जी देखें, जो पास पेपर हैं ये मैं जिसका प्लान करता हूं, मैंने कल भी, शायद आप लोग नहीं थे कल, मैंने कल भी ब्रीफ किया था, हम लोग पास्ट पेपर की डिस्कशन जो है वो करते होते हैं, और उसमें मैं कुछ टिप्स आपको बताता हूं कि किस तरह आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. वो हम हर चैप्टर के बाद, जब हमारा हर चैप्टर पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम उस चैप्टर में से जो क्वेश्चन अपेयर हुए हैं पास्ट पेपर में हम उनको डिस्कस करेंगे. एंड सेकेंडली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक के ऊपर बात किया करेंगे. दानियाल, आई कैप की बुक प्राइम सोर्स है. आपका जो पैक का स्टडी टेक्स्ट है और आई कैप वो तकरीबन समझ लें 80% सेम है, उसका फ्लो सेम है. हाँ, पैक के टेक्स्ट में थोड़ा सा उसने चीजों को जरा डिटेल में किया हुआ है. आई रिकमेंड आई कैप, मैं आई कैप को ही रिकमेंड करता हूँ. ठीक है, तो अगर आप आई कैप से ही इसको गो थ्रू करेंगे तो एक तो आपके लिए जरा आसानी हो जाएगी उसके फ्लो को मेंटेन करना, एंड सेकेंडली इट विल बी इजियर फॉर यू टू ग्रैस्प द बेसिक कॉन्सेप्ट. तो मतीन, डोंट वरी अबाउट दैट. बीएमबीएस को पास करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इसमें इंशाल्लाह हम इसको थॉरली डिस्कस करेंगे. हर चैप्टर के बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेसिक फिनोमेना, द बेसिक अंडरलाइंग टिप्स कि किस क्वेश्चन को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है और उसके अगेंस्ट किस किस्म का सवाल आ सकता है आपको. और हर चैप्टर के बाद हम पास पेपर डिस्कशन लाजमी किया करेंगे. इज इट क्लियर जी? तो लेट्स रैप अप टुडे सेशन. कल जब आप लोग आए तो प्लीज इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आपने पहले 3 थेरीज जो हैं, टेलर की, फॉयल की और अर्विक की, इसको थॉरली गो थ्रू करके आना है आपने. क्वेश्चंस लेके आने हैं आपने, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ योर क्वेश्चंस. नहीं जी, अभी मतीन अभी यही टेक्स्ट है जो 2015 का अवेलेबल है, नया टेक्स्ट अभी अवेलेबल नहीं है. तो आपने अभी इसी टेक्स्ट को फॉलो करना है जो 2015 का अवेलेबल है आपके पास. टू 2013 का है कि 15 का है? मतलब जो लेटेस्ट अपना अवेलेबल है वही चल रहा है अभी तक, उसमें कोई चेंज नहीं आया. एग्जैक्टली हाँ, उसमें अभी तक कोई चेंज नहीं आया, वही चल रहा है जी. 2013 का ही चल रहा है. देयर इज नथिंग चेंज इन इट, उसमें भी कोई चेंज नहीं है. तो आपने भी उसी को फॉलो करना है, आपने भी उसी को फॉलो करना है. जी जी बिल्कुल यही वाला है एग्जैक्टली. मतलब जो भी लेटेस्ट चल रहा है आप इसी को फॉलो करेंगे. चलें जी, इट्स प्लेजर हैविंग यू ऑल. माय थैंक्स टू मतीन, अदील, शहरयार एंड दानियाल. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. इंशाल्लाह कल मिलते हैं जी 1 बजे सेम टाइम. एंड कम प्रिपेयर्ड विद सम क्वेश्चंस, गो थ्रू विद द टेक्स्ट. चीजें पढ़ के आइएगा, अच्छी तरह जरा गो थ्रू करके आइएगा और सवाल लेके आइएगा प्लीज. सी यू इंशाल्लाह. थैंक यू. Free, man.
सही है, मुझे चाहिए। चलो, हाँ ना।